Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम विभिन्न विषयों से जुड़े आपके सवालों को भी लेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सवाल कर सकते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। और अब पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेक। माफ करिएगा, इससे पहले हम आपको टेलीफोन नंबर भी बताना चाहेंगे जिन पर आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। Sharad, we welcome you to the program Market Mantra. Thank you so much, Rajesh. Thank you so much, Amrish, and greetings to all the listeners. And the headlines: domestic stocks decline around 1.5% during the week. Sensex closes below 49,000 mark. Nifty settles few points above 14,600 level. Rupee log 39 paise weekly appreciation against the US dollar, and the US stocks extend gains yesterday amid good corporate results and hope for the economic recovery. इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में करीब 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 49,000 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी 14,600 के स्तर के ठीक ऊपर बंद हुआ। रुपए में डॉलर के मुकाबले 39 पैसे की मजबूती दर्ज की गई और अमेरिकी शेयरों में अच्छे कारपोरेट नतीजे और आर्थिक रिकवरी की उम्मीद के चलते कल बढ़त दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, कल समाप्त हुए सप्ताह में बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। देश भर में कोविड-19 के मामलों के बढ़ने और इसके मद्देनजर कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाने से अर्थव्यवस्था की गति कम होने की आशंका के कारण निवेशकों में निराशा दिखाई दी। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों से आने वाले अच्छे संकेतों के बीच घरेलू शेयरों ने कुछ हद तक अपने घाटे की भरपाई कर ली। सेंसेक्स 49,000 के नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 14,600 अंकों के ठीक ऊपर जाकर बंद हुआ। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 759 अंक यानी 1.53% गिरकर 48,832 अंकों पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 217 अंक यानी 1.46% की गिरावट के साथ 14,618 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में सेंसेक्स के मुकाबले ज्यादा गिरावट दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक 2.91% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 2.68% की गिरावट दर्ज की गई। We have a first caller online with us from Delhi. Our Bhargav, we welcome you and please go ahead and ask your question. Yeah, we are not. I have sold my flat in August
19, and after that I got a capital gain of 80 lakhs. Now I want to purchase another flat, but because of Corona, I am not able to search the flat. So the 2 years after this is finishing on 21st August. Can I get an extension, or what is the procedure to get extension because of pandemic? Mr. Bhargav, you said that you sold the flat in the month of August 19, so which means that you rightly said you've got 2 years, to buy, and of course you have 3 years if you start constructing. So here are the options, because we've just started the new financial year. And as for the Corona, you're right, Corona has slowed down the pace of, the economy and the movement of people and so on, so especially on weekends. So far, because this pandemic surge is very recent, I would say it's been over the last, 2 to 3 weeks where it's really, really caught up. So I'm sure government is going to take a call. I can tell you that in case this Corona surge continues and further restrictions are imposed on the compliance issues, which is filing of the return and so on and so forth, then we will witness maybe the Finance Ministry takes a decision to extend the deadlines available to the various taxpayers for not just for buying the house, but also there's so many other things like filing of the returns, deposit of tax, the TDS and so on and so forth. So I think for now, I would advise you that we are into April and you still have 3-4 months available with you. So I would suggest that you might get a bargain deal. You never know, because you want to buy, you might get a bargain deal, because of a lot of people bought properties during the pandemic. And I'm told that they got it at very, very reasonable prices, cheaper than the market rate. So there were a lot of distressed sales. So I would suggest you continue your search, assuming that there is going to be no extension, because the extension, Mr. Bhargav, will only and only happen if this Corona pandemic forces the government to put more restrictions, full lockdown kind of situation, which we saw last year, which is not likely. Let us keep our fingers crossed and let us hope, wish and pray that it doesn't get any worse from here, although we haven't hit the peak. But for now, I'll advise you, please continue your search and try and complete your transaction I'm sure you also must be aware, Mr. Bhargav, I must tell you, in case the date of filing of the return is before the buying of the house, then you're supposed to deposit the money in a capital gain account scheme which is opened with one of the banks, and then you can use the money from there. So continue your search, try and expedite before August. If you hear from the government about extension, then do avail, otherwise just keep this in mind. और कोलकाता से हमारे श्रोता विश्वरूप लाइन पे हैं। विश्वरूप जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। My health insurance provider hiked the annual premium by 45% against my consent or no claim. Now, grievance to IRDI, Insurance Ombudsman, as well as National Helpline, Consumer Helpline did not help at all. What do I do? Mr. Vishwaroop, you say it was hiked without your, lot of medical insurance companies have been forced to revise their premiums because of the ongoing pandemic, and it increases the risk of hospitalization, increases the risk of life, increases the risk of medicines and so on and so forth, whatever is covered in the medical insurance. So because IRDAI and the Insurance Ombudsman hasn't been able to help you, so I think what you should do is, you should look at the principal insurance contract, read the finer details, read the fine print of the contract, that whether in the contract there is a clause which allows the insurance company to enhance the premium without taking your consent. If the clause is there, Mr. Vishwaroop, unfortunately you may not be able to, you may have no recourse and you may not be able to do anything. But if there is a clause that insurance company cannot hike the premium without your consent, then you can also go legal. What I mean is you can file a suit against the company, because you always have a legal recourse open, and file in the trial court that this is what happened. It will be a civil suit and you file the suit, but please do check the fine print of your contract once, that does it contain the clause about increase in premium. If yes, then unfortunately you will have no remedy. You will have to pay, or you will probably have to terminate insurance and go for another insurance company next year or whatever. But if it is not there, then you can consider legal options. From Mumbai, we are joined in by Sumesh Bhatt. Sumesh, we welcome you. नमस्कार, मैं मिस्टर भट्ट बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा
मैंने म्यूचुअल फंड में मेरे एजेंट थ्रू मेरे म्यूचुअल फंड में पेमेंट किया था। अनफॉर्चुनेटली एजेंट एक्सपायर हो गया है और जो पेमेंट कहाँ और किसी पे वो मैं सर्च नहीं कर सकता हूँ। तो क्या मैं वो कोई वेबसाइट या कोई है जिसपे हमसे जान सके डिटेल? देखिए सुमेश जी, बड़ा दुर्भाग्यवश है कि आपके एजेंट नहीं रहे और आपको उसकी वजह से परेशानी हो रही है। हमें बहुत इस बात का दुख है और हमें बहुत अफसोस है। अब देखिए, ये डिपेंड करेगा सुमेश जी के एजेंट जो थे, उन्होंने, जो स्वर्गीय एजेंट थे, उन्होंने आगे आपका अप्लाई किया कि नहीं किया, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर किया तो कौन सी स्कीम में किया, ये आपको जानना जरूरी पड़ेगा। कौन से म्यूचुअल फंड में किया, उस म्यूचुअल फंड की भी आपको पता होगा, एक ही म्यूचुअल फंड एएमसी मल्टीपल स्कीम्स चलाती है, मतलब कई सारी चलती हैं। प्योर इक्विटी होती है, डेट होती है, हाइब्रिड होती है, उसके अंदर भी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बहुत सारी होती हैं। तो इसलिए आपको पहले ये जानना तो पड़ेगा ही, निकलवाना ही पड़ेगा किसी तरह। उनके आगे परिवार में कोई है या उनके आगे कोई लीगल एयर वगैरह हैं जो उनका कामकाज देख रहे हैं एजेंसी का। मैं आपको और सलाह दे सकता हूं कि आप जिस म्यूचुअल फंड एजेंसी का वो काम कर रहे थे, जिसकी एजेंसी थी, आप उनके एएमसी या जो उनके जो ब्रोकर्स का या एजेंट्स का काम देखते हैं, आप उस डिपार्टमेंट से संपर्क करें। आपके पास नाम तो उनका है ही है, फोन नंबर है, वो आपको उनकी सारी डिटेल्स निकाल देंगे कि वो अमूमन किस म्यूचुअल फंड में अप्लाई करते थे या उन्होंने आपको जिक्र किया होगा। तो जब तक उसकी मूल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आपके लिए ये जानना सीधा आप किस कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, किस एएमसी को कांटेक्ट करेंगे, तो एक समुद्र की तरह है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा, उनके परिवार में परिवारजन जो भी पीछे से उनके वारिस हैं, उनसे आप बात करें। आई एम श्योर उन्होंने अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप पे, अपने फाइल्स में कहीं ना कहीं ये जानकारी रखी होगी कि ये उन्होंने रुपया कहाँ जमा कराया, कौन सी स्कीम में कराया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको थोड़ा विलंब हो सकता है, देर हो सकती है, कागजी कार्रवाई आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि उनके आगे जो लीगल सक्सेसर होंगे उनके पास पहले साइनिंग अथॉरिटी आएगी और वो एएमसी से रेटिफाई होगी, तब आप अपना पैसा वापस ले पाएंगे। तो थोड़ा सा विलंब इसमें होगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर बहुत बदकिस्मती की बात है उनकी, तो उस वर्ग से धार गए, तो आप इस प्रकार इसको परस्यू कर सकते हैं। और बेंगलोर से हमारे श्रोता विवेकानंद लाइन पे हैं। विवेकानंद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? भाई मैं हूँ 83 ईयर्स ओल्ड जी। हाँ जी। और मैं इतने सालों से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, लेकिन शरद जी को मुझे केवल एक आशीर्वाद देना, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे ये कहना है कि जीवेम शरदा शतम श्रेणुयाम शरदा शतम प्रब्रवाम शरदा शतम अधीना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। विवेकानंद जी, मैं आपको, आप सीनियर सिटीजन हैं, हमारे परम आदरणीय हैं, हम आपको रेडियो के माध्यम से ही मैं चरण स्पर्श करता हूं। आपने इतना सुंदर श्लोक बना, मुझे संस्कृत पूरी नहीं आती, पर मैं कुछ समझ पा रहा था। आपके आशीर्वाद को मैं सर झुका के, मस्तक झुका के स्वीकार करता हूं, और मैं इस आशीर्वाद को सारी की सारी मार्केट मंत्रा की जितनी भी टीम है उन सब के साथ आपकी परमिशन से उसको बांटता भी हूं, क्योंकि सबकी मेहनत है जो ये आप तक ये कार्यक्रम पहुंचता है और आपकी परेशानियां दूर होती हैं। मेरा दोनों हाथ जोड़ के आपको नमन है। Ratnakar now joins us from Mumbai. We welcome you, Ratnakar. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है कि अभी ऑल ओवर इंडिया भी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसका आर्थिक परिस्थिति पर और शेयर मार्केट पर ये 30 अप्रैल तक कैसा इफेक्ट हो सकता है, ये है मेरा। और दूसरा सवाल है कि अभी ऐसे कौन से सेक्टर है और जिसमें पोटेंशियल है कि अभी हम उसमें एंटर कर सकते हैं कि वो आगे ऊपर जा सकते हैं? जी हाँ रत्नाकर जी, देखिए आपने बहुत, ये सवाल आज हर देशवासी के जहन में घूम रहा है कि ये जो अभी संकट आया है, ये दोबारा से लौट के, कहा हम जनवरी फरवरी में आराम से बैठ गए थे कि शायद हमने कोरोना को जीत लिया है, पर मैं मानता हूं हम लोगों की सबकी सामूहिक मिलजुल के थोड़ी सी लापरवाही रही, जिससे कि ये फिर से हमारे ऊपर संकट आ गया। पर आर्थिक, देखिए अगर जिस रफ्तार से कोरोना चढ़ रहा है, तो मैंने पहले भी कार्यक्रम में एक बार बोला था कि क्योंकि ये माइनर लॉकडाउन्स हैं, वीकेंड लॉकडाउन्स हैं, वीकेंड कर्फ्यूज है, नाइट कर्फ्यू है, तो इससे क्या होता है कि आर्थिक गतिविधि में रुकावट आती है, क्योंकि आप एक स्मूथ, एक जो बिल्कुल आराम से चल रही होती है सहज, वो तो नहीं चल पाती। आप देख रहे हैं मॉल में दुकानें बंद है, सिनेमा बंद है, होटल्स को कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड फैसिलिटीज में।
तो लाजमी बात है असर पड़ेगा। कुछ व्यापार इस पे सफर करेंगे। तो आर्थिक गति, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी रत्नाकर जी बोला है कि भारत की जो विकास की दर जिसकी भविष्यवाणी करी जा रही थी 12.5%, कोई 10.5% कर रहा था, कोई 11.5 कर रहा था, अब वो भी थोड़ा 1-8% उन्होंने हाथ खींचा है। पर अभी हम इसकी ये जो एकदम से सुनामी सी आई है, इसका हम अंत नहीं जान पा रहे हैं कि इसको हम कितने समय में, हालांकि वैक्सीनेशन चल रही है, पर क्योंकि एक जो ट्रेंड चल रहा है जिस तरीके से फैल रहा है और हम पूरे लॉकडाउन में इस बार नहीं गए हैं पिछले वर्ष की तरह, तो अभी इसका था पाना मुश्किल है। तो मैं ये मानता हूं कि इसका जरूर असर पड़ेगा। हम और आप मिलकर प्रार्थना करते हैं कि इस पे जल्दी भारत इससे विजय पा ले और हमारी आर्थिक गतिविधि जो प्रभावित होनी है वो नहीं प्रभावित हो पाए। दूसरा, आपने सेक्टर्स का पूछा। देखिए, 4 सेक्टर्स का मैं आपको नाम बताता हूं जो कि इस हालात में आगे ग्रो करेंगे। मुझे याद है पिछले कार्यक्रम में और पिछले से पिछले कार्यक्रम में फार्मा का जिक्र किया था। उस समय फार्मा काफी लो था। आज आप देखें इन 2 हफ्ते में ही फार्मा के शेयर्स कहां चले गए हैं। आईटी पे मैं बहुत बुलिश हूं, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है, वर्क फ्रॉम होम वगैरह लोग करते हैं जिससे बहुत बढ़ता है। तीसरा मैं एफएमसीजी पे आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एफएमसीजी सेक्टर जो है, हम इसमें कंपनियों का नाम नहीं लेते, नहीं तो मैं आपको कंपनियों का नाम लेके बताता, पर आप एज ए सेक्टर एफएमसीजी नोट करें। और चौथा, मैं मेटल सेक्टर पे बहुत बुलिश हूं, क्योंकि मेटल सेक्टर पिछले चंद महीनों से, बल्कि अब हफ्तों से नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जितने भी मेटल सेक्टर हैं। तो 4 सेक्टर को लेके मैं बहुत बुलिश हूं। बाकी रत्नाकर जी, हम और आप क्यों ना प्रार्थना करें कि अर्थव्यवस्था इससे इतनी प्रभावित ना हो और बाकी के सेक्टर्स भी उस घुड़दौड़ में शामिल हो जाएं जिस घुड़दौड़ में मैंने आपको ये 4 सेक्टर्स बताए हैं जो सबसे आगे रहने वाले हैं। तो आप प्रार्थना करें। आज तो हम राजेश और अम्बरीश, आज मैं ये प्रार्थना अवश्य मार्केट मंत्रा के माध्यम से करूंगा कि हम जल्द इस संकट से बाहर आए, क्योंकि हम सबके लिए सेहत पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं, हम शरद जी पूरी तरह से आपसे सहमत हैं और हम सभी चाहते हैं कि ये जो हो रहा है ये दौर खत्म हो और लाइफ फिर से पटरी पे लौटे और हमारी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो। और भोपाल से हमारे श्रोता शंकर लाइन पे हैं। शंकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते कॉली जी, आई होप वी कम ओवर दिस ट्रबल वेरी सून एंड वी विल बी अगेन फ्लाइंग ऑफ। तो मेरा सवाल ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के ऊपर है। वोडाफोन का केस शायद हम लोग अब लॉस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हमारी सरकार ने क्यों लगाया और जो ब्यूरोक्रेट्स ऐसा है कि अभी और आगे इतना होना चाहिए कि सरकार को जितना भी पेनल्टी लग रही है वो दे दुआ के खत्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो टैक्स पेयर का पैसा, इसमें पूछ रहा हूँ टैक्स पेयर की, ये टैक्स पेयर क्यों पेनलाइज हो, वो ब्यूरोक्रेट चला पेनलाइज हो जिनकी वजह से इस तरह का निर्णय दिया जाएगा और हम लोग शंकर जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही थी। मैं कुछ राजेश, अम्बरीश, अगर आप पूरी तरह से सुन पाए हो, मैं कुछ तो जान पाया हूँ। वोडाफोन केस का वो पूछ रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे थे। आप पूरी तरह से सुन पाए राजेश? अगर सुन पाए तो मुझे। Primarily he is talking about Vodafone and its repercussion and the learnings. हाँ जी, देखिए शंकर, जो वोडाफोन का पूरा केस था, हम पूरा केस बात करें तो बहुत उसमें समय लगेगा और श्रोता भी लाइन पे है। पर आपने जो बात करी वो बात आपकी ठीक है कि देखिए, जब भी कोई लीगल केस होता है टैक्स या किसी भी मसले में हो, तो उसमें जो कोर्ट निर्णय करता है वो अंतिम निर्णय होता है। और क्योंकि ये मामला काफी ऊपर तक गया, अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो ठीक है, जो ज्यूरी ने निर्णय लिया वो ठीक था और वोडाफोन की बात में दम था और वो केस को जीत गए। पर जहां तक बात डबल टैक्सेशन, देखिए अब मूल इसमें क्या था, सारे श्रोता शायद ना समझ पाए। इसमें डबल टैक्सेशन के ऊपर केस था। भारत में कुछ शेयर्स थे, कुछ एंटिटीज के थ्रू, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर था। पर मूलतः मैं ये कहूंगा, देखिए कोई भी सरकार होगी शंकर, मैं सरकार का बिल्कुल निष्पक्ष होकर भी बात करूं तो कोई भी सरकार होगी, हम लोग एक प्रो रेवेन्यू अप्रोच कहते हैं। तो उस सरकार का यही लक्ष्य रहता है कि विदेशी कंपनी आके भारत में अगर व्यापार करती है तो उसको यहाँ पर पूरा टैक्स देना चाहिए। और कहीं जरा सा भी अगर अंदेशा है कि जहां पर टैक्स की लीकेज है या टैक्स कलेक्ट करना बनता है तो उस सरकार, अब देखिए जब कोर्ट में भी पक्ष गए तो एक तरफ सरकार थी, एक तरफ वोडाफोन था, तो सरकार भी एक पक्ष बन जाती है उसमें। तो हर पक्ष को ये अधिकार है कि वो अपने हित की बात सोचे। तो मैं समझता हूं हमें एक बिल्कुल फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। हमें किसी की, क्योंकि कोर्ट का निर्णय था तो हम उस पर टिप्पणी तो नहीं करते, पर ये बात ठीक है कि वोडाफोन केस जीत गया। आइंदा के लिए जब भी कोई केस का निर्णय होता है, मैं आपको बता दूं शंकर,
तो उसमें वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है आगे के लिए। तो आपके सवाल का जवाब तो इसी से निकल आता है कि नाउ दिस सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल द केसेस विच हैव सिमिलर फैक्ट, जिसमें तथ्य बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे जो भी जुडिशियल अथॉरिटीज होंगी, असेसिंग अथॉरिटीज है, उसके बाद CIT अपील है, उसके बाद ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इन तथ्यों के आधार पर उनको आगे आसानी हो जाएगी। कोई भी एक केस शंकर एक डायरेक्शन देने वाला, एक मार्गदर्शक केस बन जाता है। तो हम इसको इस प्रकार लें, हम उसमें पॉजिटिव देखें, और मैं समझता हूं दोनों ही पक्षों के लिए इसमें बहुत सारे लेसन्स मिले और आगे के लिए परिस्थितियां बहुत क्लियर हो गई। तो इसमें हम थोड़ी सी निंदा ना करके मैं इसको कंस्ट्रक्टिव वे में देखता हूं, क्योंकि केस को मैं बहुत क्लोजली फॉलो अप कर रहा था और मुझे इसके तथ्य सारी जानकारी है। पर हमारे पास क्योंकि समय का अभाव होता है, हम एक ही श्रोता पे हम बहुत ज्यादा समय नहीं देते। शायद कभी आप और हम कहीं पर मिले, बात करेंगे तो आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगा केस कैसे चला। आई एम श्योर आपने भी इसको काफी पकड़ रखी है। धन्यवाद। और दिल्ली से हमारे श्रोता मनोज लाइन पे है। मनोज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन HUF पे है। HUF बनाने के लिए सन बेटे का होना जरूरी है क्या, या बेटी है जैसे बेटियां हो HUF नहीं बना सकता, ऐसा कुछ है क्या? और इसके एडवांटेजेस बताइए। और इसमें फंड्स कर्ता अपने अकाउंट से देगा या कुछ कैश डिपॉजिट की लिमिट होती है, इसके बारे में थैंक यू। मनोज, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। मैं कोशिश करता हूँ कि सब सवालों को संक्षिप्त में समेट दूं। देखिए, पहली बात तो कोई बेटा होने की जरूरत नहीं है। आप शादीशुदा होने चाहिए। HUF अगर आपने बनाना है तो आप शादीशुदा होते हैं, बेटा या बेटी हो, आप उससे HUF आगे बना सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि कर्ता इसको बनाने के लिए आपको एक सिर्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है, एक बैंक अकाउंट खुलता है। HUF आपको एक और टैक्स पेइंग एंटिटी आपके घर में खड़ी कर देती है, बगैर किसी टैक्स पेयर को जोड़े। आप ही के दो रूप हो जाते हैं, एक मनोज और एक मनोज HUF, इस तरीके से आप समझें। और इसमें जब कर्ता पैसा डालता है HUF में तो उसको HUF के लिए गिफ्ट माना जाता है। पर मनोज, उसमें ध्यान ये रखना है कि उससे होने वाली जो आय है, जो इनकम है, वो आपके यहाँ क्लब हो जाएगी। तो उसमें क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64 है इनकम टैक्स में, उसके अंतर्गत ये आपकी इनकम में क्लब हो जाता है। हाँ, उससे जो आगे आएगी, मतलब आय में से जो आय आएगी वो HUF की अपनी इनकम मानी जाएगी। नॉर्मली HUF में मनोज जो अपने फंड्स बनते हैं, वो जैसे HUF के नाम कभी कोई आपकी इनहेरिट की हुई प्रॉपर्टी है, जो पुरानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी चली आ रही है, कोई पुश्तैनी बिजनेस है, वो आप HUF के नाम जब कर देते हैं तो उससे जो उसकी नेचुरल इनकम होती है वो HUF की कैपिटल बनती जाती है, वो आपको ज्यादा लाभ पहुंचाती है। वैसे HUF को, आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि HUF को टैक्स प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है, पर उसको टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस करके नहीं देखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग का है, जिसके लिए इसमें जो मूल बात यह है मनोज कि ये केस टू केस डिफर करता है कि आपके पिताजी क्या करते थे, पिताजी कितना पैसा छोड़ के गए हैं, क्या एसेट्स छोड़ के गए हैं, आपके दादाजी क्या करते थे, तो इसमें सारा ये देखा जाता है। तब आप उसको HUF के अंतर्गत पूरा लाभ उठा सकते हैं। सिंपल HUF बना के हो सकता है आपके बच्चे आगे उसका ज्यादा प्रयोग करें, पर वो एक, हाँ, ये बहुत अच्छा डिसीजन है एक HUF खड़ा करना, मैं इसको मानता हूं। उसका पैन नंबर भी अलग होता है। संक्षिप्त में तो मैं इतना बताऊं, इसमें बारीकियां हैं, अब वो शायद फिर कभी मौका मिलेगा, हम और आप जुड़ेंगे मार्केट मंत्रा में, तो मैं आपको और डिटेल में बता पाऊंगा। Salesh from Saxena, we request you to stay with us as we tell you that the rupee in the business week ended yesterday witnessed an appreciation of 39 paise against the US dollar to 74 rupees and 36 paise per dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, was down 0.6% than its previous level to deal at 91.56. और दिल्ली से हमारे श्रोता शैलेश सक्सेना जी इंतजार कर रहे हैं। शैलेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं पूछना नहीं चाह रहा था जी। कोहली साहब से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक हेल्थ इंश्योरेंस का, एक म्यूचुअल फंड का। यदि उनकी इजाजत हो तो उनका जवाब देना चाह रहा था मैं। हाँ जी, हाँ जी सर। एक तो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्लैब बेसिस पे काम करती है, जैसे ही उन्होंने एक स्लैब क्रॉस करा होगा 35, 45, 60, उस स्लैब पे 25 से 30% की इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाती है। ये पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से होता है। Okay, Shailesh, we thank you for your support in this. Shailesh ji ko, Rajesh, I would like, Shailesh, first of all, thank you so much. I mean, we have very aware listeners and very, very knowledgeable listeners. We really feel proud of the fact. But Shailesh ji, कई दफे उसमें ये भी होता है, you know that स्लैब से तो बढ़ता ही है, एज वाइज तो बढ़ता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
पर सम इंश्योरेंस कंपनीज, अभी हाल में हमने देखा लास्ट ईयर पैंडेमिक की वजह से उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया, क्योंकि नेचुरली जो उनका रिस्क कवरेज है, जो रिस्क इनपुट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, पर जो मैंने कहा वो भी गलत है. बिल्कुल बिल्कुल. फ्रॉम मुंबई वी आर जॉइंड इन बाय हसमुख. हसमुख, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन. माय वॉइस इज क्लियर? यस प्लीज. प्लीज गो अहेड. शरद सर से मेरा प्रश्न है. हाँ जी, अभी उन्होंने बताया जो 4 सेक्टर के नाम लिए. हाँ जी, लेकिन उन्होंने एक टेलीकॉम और रियलिटी, ये 2 सेक्टर के बारे में उनकी क्या राय है अगले 2-3 महीने के लिए? देखिए, टेलीकॉम भी हसमुख जी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, पर क्योंकि मैंने जैसे कहा, और आप जानते हैं मार्केट मंत्रा के नियम, हम कंपनियों का नाम ले लेते हैं. हम अगर टेलीकॉम की कंपनीज की जब से ये पैंडेमिक रिसर्च हुआ, अगर हम उनका मूवमेंट देखें तो उसमें उछाल तो आया, पर रिलेटिवली स्पीकिंग, मतलब अगर हम कंपैरेटिव दृष्टि से देखें, तुलनात्मक दृष्टि से, तो उतना नहीं आया. पर हाँ, आपकी बात ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में भी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है. मैं उसको थोड़ा आईटी के साथ ही हसमुख जी जोड़ के देखता हूं, थोड़ा उसका आप नजदीक का रिश्तेदार कह लीजिए, अगर मैं थोड़ा मजाकिया टोन में कहूं. दूसरा, आपने रियलिटी सेक्टर का कहा. रियलिटी सेक्टर हमने देखा कि पिछले 6 महीनों में बहुत ही बढ़िया उसमें ग्रोथ दिखाई दी. पर आप नोट करेंगे कि अगर पैंडेमिक हिट करता है, अगर पैंडेमिक बढ़ता है और ये क्राइसिस और थोड़ी डीप जाती है और ये फैलता है, तो फिर क्या होता है. हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो जो सौदे थे प्रॉपर्टीज के वो होने बंद हो गए थे, बहुत सारे बिल्डर्स बैठ गए थे, प्रोजेक्ट रुक गए थे, लेबर सारी घर चली गई थी, माइग्रेट कर गई थी. तो इसलिए रियलिटी सेक्टर को मैं थोड़ा सा, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर अगर पैंडेमिक की सिचुएशन बनी रही तो हसमुख जी थोड़ा सा मैं रियलिटी सेक्टर पे संकोच करूंगा उसको रिकमेंड करने में. हाँ, अगर पैंडेमिक सुधरता है तो रियलिटी सेक्टर में जो बॉयंसी बनी हुई है, जो पीछे एक चाल बनी हुई है, वो आगे जरूर जाएगी. Moving on, the major U.S. equity indices logged modest gains yesterday. Optimism about a solid economic rebound put the 3 major U.S. stocks on course for a weekly gain. The Dow and the S&P 500 hit record highs as big U.S. banks posted robust quarterly earnings. The benchmark S&P 500 and the blue chip Dow are on course for their 4th straight week of gains. 9 of the 11 S&P indices were higher, with only the information technology and the energy indices edging lower after outperforming in the previous session. The Dow Jones Industrial Average gained 0.5%, the S&P 500 climbed 0.4%, and the Nasdaq Composite Index added 0.1%. U.S. is heading towards a solid economic rebound, as the stories just said. And what do you think is the learning for the rest of the world from what India has gone through in terms of the pandemic recovery? And again, we have come to a situation where we are thinking, wonder what will happen tomorrow. Yes, Rajesh, a very, very pertinent point. I think the rest of the world, they say, you should learn from mistake of others, because nobody lives long enough to do all the mistakes by themselves and then correct themselves. Yes, I mean, the magic word, key word is complacency. I think we observed a certain, and we all are responsible for this. I don't hold either government or the local government or the state government. Nobody, we all were responsible, because when in January and February or December, when the pandemic had settled, we had started imagining that, oh, look, it is still in Europe. We Indians have strong immunity. We can have golgappas on roadside. That is why, we've got this immunity, and so on and so forth. There were all sorts of things being spoken about. Okay. But I think the pandemic was smarter than us. So the complacency should not be there. Please, even if you're getting vaccinated, please protect yourself. Do not lower the guard. शरद जी, हम चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद. और दिल्ली से हमारे श्रोता मनोज भार्गव जी भी लाइन पे थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम उनका सवाल नहीं ले पाए. हम क्षमा प्रार्थी हैं. और अब राजेश, हेडलाइंस. Sharad, thank you so much for being with us. Thank you so much. Thank you, Ambrish. And before we close the headlines once again, domestic stocks decline around 1.5% during the week. Sensex closes below 49,000 mark. Nifty settles few points above 14,600 level. Rupee logged 39 paise weekly appreciation, and the US stocks extend gains yesterday amid good corporate results. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.